In this session, we will discuss about malaria. We will also discuss about India's malaria report 2025. Lecture is important for GS paper 2, GS paper 3 for prelims and for mains. Why in news? The Union Health Ministry has recently released its India's progress towards malaria elimination technical report 2025. Recently, Union Health Ministry ने malaria elimination technical report 2025 रिलीज किया है. This report highlights significant steps made in India to reduce malaria burden and outline critical challenges to achieving the 2030 elimination goal. इस रिपोर्ट के अंडर इंडिया में मलेरिया बर्डन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट के क्या-क्या स्टेप्स रहे हैं एंड इंडिया का 2030 तक मलेरिया से रिलेटेड जो भी गोल सेट किया गया है उसको अचीव करने के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट मेजर्स टेकिंग किए गए हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर हाईलाइट गिवन किए गए हैं इस रिपोर्ट में. की फाइंडिंग्स एंड प्रोग्रेस. मलेरिया से रिलेटेड की फाइंडिंग्स क्या-क्या रही है, क्या-क्या प्रोग्रेस हुआ है. सिग्निफिकेंट डिक्लाइन. Malaria cases in India dropped by over 80% and death fell by about 78%. मलेरिया केसेस इंडिया में 80% तक डिक्लाइन हुए हैं. वहीं मलेरिया डेथ की अगर बात की जाए तो 78% तक फैल हुए हैं. 2015 में जहां मलेरिया केसेस 11.7 लाख हुआ करते थे, 2024 में ये 2,27,000 तक रिड्यूस हुआ है. वहीं अगर मलेरिया डेथ की जाए तो मलेरिया डेथ 2015 में जहाँ 384 डेथ हुआ था, वहीं 2024 में ओनली 83 पीपल का डेथ मलेरिया की वजह से हुआ है. Pre-elimination phase. 92% of districts now report an annual parasite incidence of less than 1, indicating that India has largely entered the pre-elimination phase. Exit from HBHI group. In 2024, India exited the World Health Organization's high burden to high impact group, a major global milestone. 2024 में इंडिया को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट से एग्जिट कर दिया गया है. 0 केसेस in district. 122 districts reported 0 indigenous malaria cases in 2023. 2023 में इंडिया का अबाउट 122 डिस्ट्रिक्ट को जीरो इंडिजिनस मलेरिया केसेस के लिए रिपोर्ट किया गया. स्ट्रेंथन्ड सर्विलेंस. द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IHIP has enabled real-time case-based reporting, improving response time. Major challenges identified. इस रिपोर्ट में मलेरिया से रिलेटेड मेजर चैलेंजेस क्या-क्या आइडेंटिफाई किए गए. The report highlights several persistent challenges that could threaten India's 2030 elimination goal. Urban malaria. The spread of the invasive mosquito vector Anopheles stephensi in metropolitan areas like Delhi is an emerging national concern. दिल्ली जैसा सिटी में इन्वेजिव मॉस्किटो वेक्टर का जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है सच एज एनोफिलिस स्टीफेंसी, ये नेशनल कंसर्न के तौर पर इमर्ज हो रहा है. हाई बर्डन pocket of high transmission persists in certain districts, particularly in Odisha, Tripura, and Mizoram. Operational difficulties, asymptomatic infections, difficult terrain, and population movement continue to drive transmission. प्राइम ट्रांसमिशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सच एज asymptomatic infections, difficult terrain, एंड पॉपुलेशन मूवमेंट ये मलेरिया इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर रहे हैं. क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्री लाइक म्यांमार एंड बांग्लादेश have had border district in northeastern India. Resource gap. Challenges include inconsistent private sector reporting, limited entomological capacity, drug and insecticide resistance, and sporadic shortage of diagnostic and treatment commodities. India's broader strategy. मलेरिया एलिमिनेशन के लिए इंडिया का ब्रॉड स्ट्रेटेजी क्या है? गोल. India aims for a zero indigenous case by 2027 and complete elimination by 2030. इंडिया ने एम रखा हुआ है कि मलेरिया से रिलेटेड 2027 तक जीरो
इंडिजिनस केस तक इसको रिड्यूस करना है एंड 2030 तक मलेरिया को कंप्लीट एलिमिनेट करना है। गाइडिंग डॉक्यूमेंट इंडिया स्टडी इज गाइडेड बाय नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया 2016-2030 एंड मोर रिसेंट नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2023-27 interventions. Key strategies include the test, treat, trick approach and the intensified malaria elimination project targeting 159 high burden districts. What is malaria? Malaria क्या होता है? Malaria, a life-threatening disease which is caused by Plasmodium parasite. मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम पैरासाइट ह्यूमन के अंदर इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है। मोस्ट कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग सब सहारन अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। Plasmodium falciparum is responsible for more than Plasmodium vivax is the most widespread of all the malaria species. Symptoms of malaria. Malaria के क्या क्या symptoms होते हैं? Plasmodium parasite multiply in the liver and then infect red blood cells, which causing symptoms such as fever, chills, headache, muscle ache, and fatigue. प्लाज्मोडियम पैरासाइट लीवर के अंदर मल्टीप्लाई होता है देन रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करता है जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स सच एज फीवर, चिल्स, हेडेक, मसल एक एंड फैटिक ये सब यहाँ पर शो हो सकते हैं। इन सीवर केसेस मलेरिया कैन लीड टू कोमा, ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। सीवर केस में मलेरिया की वजह से कोमा, ऑर्गन फेलियर एंड डेथ जैसी सिचुएशन यहाँ पर शो हो सकती है। वैक्सीन ऑफ मलेरिया, मलेरिया से रिलेटेड क्या क्या वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई हैं? नंबर वन RTSS, WHO gave a go ahead for the first malaria vaccine which is known as RTSS in high transmission African countries। हाई ट्रांसमिशन अफ्रीकन कंट्रीज में WHO ने फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन RTSS को गो अहेड किया है। Developed by with collaborative efforts of organization Glasgow Smith Kline, Bill and Melinda Gates Foundation etc. इन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको फाउंड किया है, डेवलप किया है। भारत बायोटेक हैज बीन ग्रांटेड लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर दिस वैक्सीन इन इंडिया। RTSS को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत बायोटेक को यहाँ पर लाइसेंस गिवन किया गया है। इट मीन्स RTSS अब भारत में भी मैन्युफैक्चर की जा रही है। नंबर 2 R21 similar to RTSS vaccine, the Oxford University has developed a vaccine called R21। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी RTSS वैक्सीन के सिमिलर ही R21 वैक्सीन डेवलप की है। नाइजीरिया एंड घाना हैव अप्रूव्ड दिस वैक्सीन फॉर यूज इन देयर कंट्रीज। नाइजीरिया एंड घाना इन सभी कंट्रीज ने R21 वैक्सीन को अपने कंट्री में अप्रूवल गिवन किया है। इट इज ऑल्सो बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा भी इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन टू कंट्रोल मलेरिया, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स क्या क्या टेकिंग किए गए हैं? व्हाट आर इंडियाज एफर्ट्स, इंडिया के द्वारा क्या क्या एफर्ट किए गए हैं? नंबर 1 नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, an umbrella program for prevention and control of vector-borne diseases such as chikungunya, dengue, malaria, Japanese encephalitis, कालाजार एंड लिम्फेटिक फिलारियासिस। ये सभी जो डिसीज हैं ये वेक्टर बोर्न डिसीज हैं। इन वेक्टर बोर्न डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंडिया में नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। नंबर 2 नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च इन 1953। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम NMCP 1953 में लॉन्च किया गया था। इट इंक्लूड्स 3 की एक्टिविटीज, इसके अंदर 3 की एक्टिविटीज इंक्लूड की गई हैं। मॉनिटरिंग सर्वेलेंस ऑफ मलेरिया केसेस, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, इंसेक्टिसाइडल रेसिडुअल स्प्रे विद DDT। नंबर 3 नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 टू 2030। 2016 टू 2030 के लिए इंडिया में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन स्टार्ट किया गया। इट इज बेस्ड ऑन WHO ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016-30।
डब्ल्यूएचओ ने भी ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016-30 लॉन्च किया। उसी के बेस पर इंडिया में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016-30 लॉन्च किया गया। एम्स ऑफ एनएफएमई बाय 2030 एलिमिनेट मलेरिया थ्रू आउट द एंटायर कंट्री। एनएफएमई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो 2030 तक मलेरिया को थ्रू आउट द कंट्री एलिमिनेट करना है। मेंटेन malaria free status in some areas where malaria transmission has been interrupted and prevent reintroduction of malaria. Number 5, high burden to high impact initiative started in July 2019 in 4 states: West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh and MP. हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव इंडिया के अंदर 2019 में लॉन्च किया गया था। स्पेशली 4 स्टेट के अंदर ये लॉन्च किया गया था। इट मीन्स उन स्टेट के अंदर जहां पर मलेरिया का हाई बर्डन है, उनको हाई इम्पैक्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया। वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड एमपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स टू हाई बर्डन एरियाज प्रोविजन इन these 4 very high endemic state। इन 4 स्टेट के हाई बर्डन एरियाज में लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। नंबर 5, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, मेरा इंडिया। It has been established by Indian Council of Medical Research (ICMR) with the collaboration of partners working on malaria control। ICMR ने इंडिया में मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया लॉन्च किया, विच इज ऑल्सो नोन एज मेरा इंडिया। ग्लोबली एफर्ट्स क्या करें हैं मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए? नंबर 1, ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम लॉन्च बाय WHO, रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल एंड एलिमिनेट मलेरिया। वर्क इज गाइडेड बाय द ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016 to 2030। This strategy aims to reduce malaria case and mortality rates by at least 40% by 2020, 75% by 25 and 90% by 2030 against a 2015 baseline। Number 2, Malaria Elimination Initiative launched by Bill and Melinda Gates Foundation। Main focus to eliminate malaria in certain regions of the world throughout various strategies such as encouraging access to effective treatment, reducing the mosquito population, and developing new tools and technologies to combat the disease। Number 3, E 2025 initiative. WHO launched the E 2025 initiative in 2021 to control the transmission of malaria in 25 identified countries by 2025। 2025 तक 25 आइडेंटिफाइड कंट्री से मलेरिया ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने 2021 में ई 2025 इनिशिएटिव लॉन्च किया था। दिस इज PYQ related to this article। Widespread resistance of malaria parasite to drug like chlorine has prompted attempts to develop a malaria vaccine to combat malaria। Why is it difficult to develop an effective malaria vaccine? 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। करेक्ट आंसर इज बी, मैन डज नॉट डेवलप इम्यूनिटी to malaria drugs during natural infection।